डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ligand substitution reaction or ligand exchange reaction. So you know, ligand exchange or ligand substitution reaction is that reaction in which the ligand of the complex is replaced by other ligands. When ligands when ligands of the complex are replaced by other ligands. जब कॉम्प्लेक्स के ligands replace हो जाएं with the other ligands, then such reaction is known as ligand substitution reaction, or such reaction is known as ligand exchange reaction. Acha, this ligand exchange reaction will only happen if the resulting complex is more stable. If the product complex is more stable than the reactant complex, then only in that case ligand substitution will take place. Ligand substitution will happen only when the product complex is more stable than the reactant complex. Complex is more stable than reactant complex. बेटा अभी when I give you example तो आपको explain हो जाएगा कि what it means. Now we will discuss some reactions of ligand exchange, and this is the other thing, the stability thing. So you will come to know that how the discussion is proceeding. So बेटा जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, we are going to discuss ligand exchange reactions today, या ligand substitution reactions. So ligand exchange या ligand substitution reactions are those reactions in which ligand of the complexes are replaced by the other ligands. ठीक है? अच्छा, ना बेटा पहले तो मुझे बताओ कि लास्ट क्लास में at the end I explained this concept कि when I write copper ions in aqueous state, what it means बेटा, अगर हम ट्रांजिशन मेटल आयंस को एक्वस स्टेट में लिखें तो उसका क्या मतलब होगा? जी बेटा, एनीवन इन द क्लास? I will repeat this, that copper ions in aqueous state means this thing. The copper ions are surrounded by 6 water molecules in a way that water molecules are making dative bonds with copper ions, or you have to consider 6 water molecules. You have to consider octahedral complex. ये मीनिंग होंगे. किसी भी ट्रांजिशन मेटल आयन जब एक्वस स्टेट में होगा तो दैट विल मीन दिस थिंग, एंड दिस इज अ कॉम्प्लेक्स. So how we define complex? That when ligands are surrounded through dative bonding with central metal ion, then the resulting thing is complex. तो जो कोई भी ट्रांजिशन मेटल आयन हो, लेट्स से इफ आई कंसिडर कोबाल्ट in the aqueous state, तो कोई भी transition metal ion in the aqueous state will mean this thing, that cobalt is there together with 6 water or aqua ligands. So transition metal ions in the aqueous state will represent this kind of complex. ठीक है?
अच्छा, now the other thing which you are familiar from O level studies, बेटा आपने O level से ये ऐसे पढ़ते रहे हैं ना कि कॉपर आयंस हो एक्वस स्टेट में, और here I am taking sodium hydroxide, here I am taking ammonia. तो व्हाट हैपेंस अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर आयंस एक्वस में ऐड करूं? आपने ओ लेवल्स में ये इस तरह के रिएक्शंस पढ़े थे। जी बेटा, एनीवन हु इज फेमिलियर विद दिस? इस तरह का टेबल आप ओ लेवल्स में पढ़ते थे, और एएस के प्रैक्टिकल में भी था ये। सर ये तो कलर वाला था ना। हाँ सर ये वो ब्लू आयंस बनाता है ना। ब्लू प्रेसिपिटेट बेटा, ये बनेगा ब्लू प्रेसिपिटेट, और फिर आप लिखते थे इनसॉल्युबल इन एक्सिस। और सर NH3 का फॉर्म्स डीप ब्लू सॉल्यूशन होता है। इनसॉल्युबल इन एक्सिस, हाँ ये इसमें मेमोराइजेशन है, ठीक है, तो आपको यू हैव टू मेक सम मेमोराइजेशन। और जब अमोनिया के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करें तो यू विल गेट ब्लू प्रेसिपिटेट एंड देन हाँ सॉल्युबल इन एक्सिस, सॉल्युबल इन एक्सिस, ठीक है। सर वो पूरा नहीं लिखना होता कि हाँ फॉर्म्स पूरा डीप लिखना ब्लू होता है, सॉल्यूशन। डार्क ब्लू सोल्यूशन बनता है, ठीक है, डार्क ब्लू सोल्यूशन। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉपर आयंस का लाइट ब्लू सोल्यूशन होगा, ये लाइट ब्लू सोल्यूशन है। अब ये सारा ऐसा क्यों हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं और ये ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, अमोनिया हम ऐड कर रहे हैं, तो ये सारी ऑब्जर्वेशन इसलिए आ रही हैं ड्यू टू लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन इज हैपनिंग, ठीक है। अभी हमने इसको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन, ligand exchange reaction is happening, ठीक है। how ligand exchange is happening, अब आप देखें कि let us discuss ligand exchange reaction। तो पहले मैं ये कंसिडर कर रहा हूं कि few drops of NaOH added to copper ions aqueous, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स OH ऐड किए। अच्छा, अब देखो कॉपर आयंस एक्वस स्टेट में विल बी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, अभी हमने डिस्कस किया, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। कॉपर आयंस एक्वस का मतलब है कि हाउ मेनी 6 aqua ligands या 6 water ligands are there around this copper ion। तो अब आप देखो कि मैं एक वन ऑफ द वाटर को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, ये 6 वाटर लिगेंड्स हैं एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स, चार्ज इज डाई पॉजिटिव। अच्छा, चार्ज डाई पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है? कॉपर आयन पे क्या चार्ज है? कॉपर आयन पे चार्ज 2+ है, क्योंकि वाटर लिगेंड्स आर न्यूट्रल, वाटर लिगेंड्स आर न्यूट्रल। अच्छा बेटा, अब इधर मैं 2 OH ले रहा हूं, 1 OH हेयर एंड द अदर OH हेयर। आपको इसी तरह मेमोराइज करना है, इन रिएक्शंस को आपने मेमोराइज करना बेटा। सो ये देखिए, दिस हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव, राइट बेटा? यू नो वाटर का हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव। उसके बाद ये लोन पेयर विल अटैक हियर, this lone pair will attack here. So what will happen? This OH will pick this hydrogen to make H2O, और दूसरा OH भी will pick the other hydrogen of water to make 2H2O। सर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं? ये एक्चुअली जो OH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने ऐड किए, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले OH आ रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले OH आके इन वाटर के H को पिक कर रहे हैं। हाँ जो सर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी तो यही होता था। नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंटरेक्शन होता था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ पे तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। हाँ मैंने मिक्स अप कर दिया, सॉरी। हाँ अच्छा, अब देखो बेटा,
अब असल में इसके रिजल्ट में हुआ क्या है कि 4 वाटर लिगेंड्स तो एज इट इज हैं, 4 वाटर लिगेंड्स तो एज इट इज है ना. व्हाट हैपेंड टू द अदर 2 वाटर लिगेंड्स? वो जो बाकी 2 वाटर लिगेंड्स है वो OH बन गए हैं. हुआ ऐसा कि नहीं? यस जो सर। बाकी 2 वाटर लिगेंड्स थे वो OH बन गए हैं. तो यानी लिगेंड चेंज हो गए हैं कि नहीं? आप देखें लेफ्ट साइड पे 6 वाटर लिगेंड्स थे, लेकिन अब राइट साइड पे आपके पास 4 वाटर लिगेंड्स हैं और 2 OH लिगेंड्स हैं. तो ये असल में लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन हुआ है. ठीक है, लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन हुआ है. अच्छा ये देखो, अब ये बात भी गौर से सुनो. ये लेफ्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये एक्वस है, क्योंकि इसका चार्ज है डाई पॉजिटिव. जिस कॉम्प्लेक्स का चार्ज होगा वो एक्वस स्टेट में होगा. लेकिन राइट साइड वाले कॉम्प्लेक्स का चार्ज नहीं है. क्यों नहीं है राइट साइड वाले कॉम्प्लेक्स का चार्ज? सर क्योंकि राइट OH साइड, नेगेटिव होता है, 2 OH हैं सर, हाँ तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 OH का 2 नेगेटिव और कॉपर का 2 पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा. तो जब कॉम्प्लेक्स का चार्ज नहीं होता फिर ऐसा कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल नहीं होगा, ऐसा कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल होगा. ठीक है, तो ये लेफ्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स है इट गिव्स यू लाइट ब्लू सॉल्यूशन. लेकिन राइट वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये आपको देगा ब्लू प्रेसिपिटेट. तो अब अगर आपसे फॉर्मूला ब्लू प्रेसिपिटेट पूछे तो यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस वेरी कॉम्प्लेक्स, और ये तब फॉर्म होगा जब फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे. ठीक है, अब एग्जाम में इतनी ज्यादा स्पेस नहीं होगी कि आप कॉम्प्लेक्स को यूं ओपन करके शो करें. ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया. तो एग्जाम में यू विल राइट, ठीक है, इसको जो बच्चे नोट कर रहे हैं नोट कर लें बेटा. इसी को एग्जाम में यू नीड टू राइट इट लाइक दिस के फ्यू ड्रॉप्स NaOH जब ऐड करें, add it to copper ions aqueous, so ligand exchange reaction will happen. Then ligand exchange reaction happens, and you need to write this kind of equation: copper H2O, 6 equiligands. This is dipositive है तो it will be aqueous. और 2 OH लें. You have to memorize this, okay? ये बस याद रखना कि 2 OH लेंगे और 2 OH will replace 2 aqua ligands. 2 water ligands will be replaced. तो water ligands 6 में से 4 रह जाएंगे और ये 2 OH ligands replace कर लेंगे, और जो 2 water ligands है वो बाहर आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स से. ठीक है, तो अब स्टेट सिंबल देखें. दिस कॉम्प्लेक्स इज सॉलिड क्योंकि इसका चार्ज नहीं है. जिस कॉम्प्लेक्स का चार्ज ना वो सॉलिड होगा, एंड इट रिप्रेजेंट्स ब्लू प्रेसिपिटेट. ब्लू प्रेसिपिटेट विल बी ड्यू टू दिस कॉम्प्लेक्स, और द कॉम्प्लेक्स ऑन द लेफ्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट ब्लू सोल्यूशन. लाइट ब्लू सोल्यूशन. ठीक है, अब व्हाट हैपेंस इन कि अगर हम एक्सेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें, इफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड इन एक्सेस, ठीक है, तो नो फर्दर रिएक्शन टेक्स प्लेस. प्रेसिपिटेट रिमेन्स इनसॉल्युबल. द रीजन इज कि फर्दर लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन डज नॉट हैपन. दिस इज H2O4 OH twice solid. These are blue precipitate. इन ब्लू प्रेसिपिटेट में अगर आप एक्सिस में ऐड करो NaOH, no further reaction happens. No further reaction happens. So that is why we say कि जब एक्सिस में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें तो precipitate remains insoluble.
सर लेकिन वो बाकी एच भी तो पार्शियल पॉजिटिव नहीं होते। बाकी एच भी, यानी ये बाय डिफॉल्ट आपने करना है कि दो दो ओ एच है ना, वो किसी भी दो एक्वा लिगेंड्स के एच को पिक कर लेंगे, क्योंकि फ्यू सर जब ड्रॉप्स में एक्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। सर जब एक्सेस में डालेंगे तो बाकी जो सर आपके पास हाइड्रोजन है 4। हाँ जी बिल्कुल सर वो तो प्रेजेंट हैं, लेकिन एक्चुअली हम नेक्स्ट क्लास में कौन से पढ़ेंगे, के स्टैब। ये लिगेंड एक्सचेंज जो है ये के स्टैब वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बना है ना, ये ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से ये फर्दर लिगेंड एक्सचेंज नहीं कर रहा। लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन तभी होगा जब प्रोडक्ट वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है, तो दो से ज्यादा ओ एच अगर इस कॉम्प्लेक्स में आए तो ये कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल हो जाता है। दो से ज्यादा ओ एच अगर इसमें आए इस वाले कॉम्प्लेक्स में तो ये अनस्टेबल हो जाता। ठीक है, राइट सर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्सिस वाले एनवायरनमेंट में ये फर्दर लिगेंड एक्सचेंज नहीं करेगा ये वाला कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। अब ये रिएक्शन नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। जब कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा वो लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन नहीं करेगा। लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन तभी होगा जब प्रोडक्ट साइड वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। और दूसरा आपको ये याद रखना है, इसी तरह जिस तरह आपके सामने स्क्रीन पे हैं ये रिएक्शन एज इट इज यू हैव टू मेमोराइज। ठीक है बेटा, ओके ना बेटा। द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर हम अमोनिया ऐड करें, वंस अगेन ये भी थोड़ी मेमोराइजेशन है बेटा, इसको भी याद रखना है कि इफ few drops of ammonia is added, तो देखो अमोनिया चूंकि फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर रहे हैं, what happens, ammonia will make a reaction with water. Yes, what product will be formed? Ammonia, whenever reacts with water, it produces ammonium ion and Right. hydroxide ion. ठीक है, तो जस्ट बेटा नोटिस कि जब फ्यू ड्रॉप्स अमोनिया ऐड करोगे तो यू विल गेट OH ions. Now OH is ligand. So same reaction will happen. Copper ions are actually सर they अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयोनिक है ना, तो वो डिसॉल्व रहेगा ना वाटर में। अच्छा। अमोनिया के जितने कंपाउंड्स हैं वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो वंस अगेन देखो ये वही रिएक्शन हो रहा है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने ऐड किया था। जो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया था ना, वही रिएक्शन हो रहा है। फ्यू ड्रॉप्स अमोनिया जब आपने ऐड करेंगे तो दो OH आयंस, ये OH आयंस बन रहे हैं ऊपर वाले रिएक्शन में। तो द OH आयंस जो के ऊपर बन रहे हैं वो दे विल टेक पार्ट इन लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन। तो जो 6 वाटर लिगेंड्स है दे विल बी कन्वर्टेड इनटू 4 वाटर लिगेंड्स and 2 OH ligands will come here and 2 water ligands will be displaced. अब स्टेट सिंबल्स इसमें जरूरी हैं। स्टेट सिंबल इज वंस अगेन सॉलिड हेयर। तो ये जो लेफ्ट वाला कॉम्प्लेक्स है इट इज लाइट, इट गिव्स लाइट ब्लू सॉल्यूशन। जो राइट वाला कॉम्प्लेक्स है इट गिव्स ब्लू प्रेसिपिटेट। जी बेटा, जी क्वेश्चन है कोई? जी बेटा, ये सॉलिड सर वो डी ब्लू सॉल्यूशन नहीं बन जाता सॉल्युबल होकर? सबर करें ना, अभी फ्यू ड्रॉप्स ऐड किए ना आपने। अच्छा, ये फ्यू ड्रॉप्स अमोनिया ऐड किए हैं। ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स अमोनिया ऐड करें तो ये ब्लू प्रेसिपिटेट बनेंगे इस कॉम्प्लेक्स की वजह से। कॉम्प्लेक्स ऑन द राइट, इसकी वजह से ब्लू प्रेसिपिटेट बने। अब जब अमोनिया एडेड इन एक्सिस, इफ अमोनिया एडेड इन एक्सिस बेटा, तो फिर क्या होगा? डीप ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म्स। डीप ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म्स वो असल में कॉम्प्लेक्स बनता है। लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन टेक्स प्लेस एक्सिस ऑफ अमोनिया में। एक्सिस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में लिगेंड एक्सचेंज नहीं हो रही थी फर्दर, लेकिन जब अमोनिया एक्सिस में ऐड करें, दिस इज द कॉम्प्लेक्स। 4 वाटर लिगेंड्स हैं, 2 OH लिगेंड्स हैं।
ये सॉलिड है। और बेटा अब आपने अमोनिया ऐड किया एक्सेस में, तो यू हैव टू मेमोराइज लाइक दिस, 4 अमोनिया लिगेंड्स लें। बेटा ये एज इट इज आपने मेमोराइज करना है। 4 अमोनिया लिगेंड्स लें, तो कॉपर के साथ 4 अमोनिया लिगेंड्स विल मेक डेटा बॉन्ड, और 2 वाटर लिगेंड्स रहेंगे। ये 4 अमोनिया लिगेंड्स क्या करेंगे, 2 OH लिगेंड्स को डिस्प्लेस करेंगे, 2 वाटर लिगेंड्स को डिस्प्लेस करेंगे। यू हैव टू मेमोराइज दिस रिएक्शन। 2 वाटर लिगेंड्स और 2 OH लिगेंड्स रिप्लेस हो जाएंगे। अब ये जो कॉम्प्लेक्स राइट साइड पे है, इस पे कोई चार्ज होगा? राइट साइड पे जो कॉम्प्लेक्स है, सर +2। हाँ राइट साइड पे जो कॉम्प्लेक्स है ये +2 होगा, क्योंकि इसके लिगेंड्स न्यूट्रल हैं। अब राइट साइड वाले कॉम्प्लेक्स से लिगेंड्स न्यूट्रल हैं, तो इस पे डाई पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जो चार्ज लिगेंड होगा वो हमेशा, जो चार्ज कॉम्प्लेक्स होगा वो हमेशा एक्वस होगा। जो चार्ज कॉम्प्लेक्स होगा वो हमेशा एक्वस होगा। अब ये ब्लू प्रेसिपिटेट थे इन कॉम्प्लेक्स की वजह से, और ये राइट पे जो कॉम्प्लेक्स बना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीप ब्लू सोल्यूशन। सर अमोनिया सिर्फ एक्सेस में रिएक्ट करेगा? अमोनिया हाँ, जब एक्सेस में होगा तो तब वो इस तरह की लिगेंड डिस्प्लेसमेंट कॉज करेगा जो आपके सामने है स्क्रीन पे। ये जो आज का लेसन है इसमें मेमोराइजेशन इन्वॉल्व है। यू हैव टू मेमोराइज दीज रिएक्शंस। जब फ्यू ड्रॉप्स अमोनिया ऐड करें तो वही रिएक्शन होगा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऐड करने से हुआ था। ऊपर वाला रिएक्शन देख लें, फ्यू ड्रॉप्स अमोनिया ऐड करें तो वही रिएक्शन होगा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऐड करने से रिएक्शन हुआ था। देखिए जब एक्सेस में अमोनिया ऐड करेंगे तो ये नीचे वाला रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। ठीक है। अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट थिंग इज कि अगर हम HCl ऐड करें, अगर हम ऐड करें, इफ excess of concentrated HCl is added to copper ions aqueous, then light blue solution turns yellow. Light blue solution turns yellow. अच्छा, इसकी क्या वजह है बेटा? जो लाइट ब्लू सोल्यूशन है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, दिस इज डाई पॉजिटिव एक्वस। अच्छा, जब हम इसमें HCl ऐड करें तो क्लोरोलिगेंड्स अवेलेबल होंगे। जब HCl ऐड करें तो क्लोरोलिगेंड्स अवेलेबल होंगे। तो व्हाट हैपेंस, दिस क्लोरोलिगेंड्स विल डिस्प्लेस एक्वालिगेंड्स। एक्वालिगेंड्स यानी वाटर लिगेंड्स। तो क्लोरोलिगेंड्स will displace aqua ligands. Okay, now charge is 4-, or 6 water ligands will be displaced. तो अब चार्ज कॉम्प्लेक्स विल बी एक्वस। अब ये जो लेफ्ट पे जो कॉम्प्लेक्स है, दिस गिव्स लाइट ब्लू सॉल्यूशन, और जो कॉम्प्लेक्स ऑन द राइट हैंड साइड है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर ऑफ सॉल्यूशन। This will give you yellow solution. समझ आ रही है बेटा? So this is ligand exchange reaction. You can also write it like this. Both are acceptable. Okay, you can take 4 chloroligands and it will make 4 chloroligands will displace 6 aqua ligands. ठीक है? So this is aqueous, this is also aqueous. So this gives you light blue solution, this gives you yellow solution.
ये दोनों ठीक हैं, बोथ आर एक्सेप्टेबल, विच एवर यू वांट यू कैन प्रोसीड विद। ठीक है सर नीचे वाले में 2 डेटिव बॉन्ड कम क्यों है? बेटा, ये जब नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं ना, तो उसमें 4 डेटिव बॉन्ड्स वाला कॉम्प्लेक्स भी बनता है, वो ज्यादा प्रेफरेबल होता है। 6 वाला भी बन सकता है, 4 वाला भी बनता है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव आपस में भी रिपल्जन कॉज करते हैं ना। कॉम्प्लेक्स तब ज्यादा स्टेबल होता है जब लिगेंड्स में रिपल्जन कम हो। अच्छा बेटे, सारे डिस्कशन को समराइज करें और मुझे बताएं कि लाइट ब्लू सोल्यूशन किस वजह से था। 6 हाई वो H2O। इस कॉम्प्लेक्स की वजह से था 6 एक्वा लिगेंड्स डाई पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा अब ब्लू प्रेसिपिटेट किस कॉम्प्लेक्स की वजह से थे। सर OH। ये आपको, हाँ ये आपको याद रखना है, H2O 4 होने चाहिए और OH 2 होने चाहिए, सो दैट कि नेट चार्ज ना हो इसका। नेट चार्ज जब नहीं होगा तो ये कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल होगा। फिर आपको ये याद रखना है डीप ब्लू सोल्यूशन, वो किस कॉम्प्लेक्स की वजह से था। तो अमोनिया उसमें NH3। NH3 आपने 4 लेने हैं और वाटर आपने 2 लेने हैं डाई पॉजिटिव। ठीक है, और फिर आपको ये पता हो कि येलो सोल्यूशन किस वजह से था। क्लोराइड आयंस। येलो सोल्यूशन आपको हमने डिस्कस किया, ये क्लोरोलिगेंड्स की वजह से। तो CuCl आप भले 4 लें या 6 लें। सर इनको लिगेंड्स लिखना है या इनको आयंस भी लिख सकते हैं? किसको बेटा। सर ये जो क्लोरो लिगेंड्स हैं इनको हम लोग क्लोरीन आयन क्लोराइड आयंस भी कह सकते हैं, क्योंकि सर है तो वही चीज, मतलब Cl- ही हाँ है। क्लोराइड आयन है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स में इसको लिगेंड ही बोलना चाहिए, राइट सर। क्योंकि एज अ लिगेंड जो इसका करेक्टरिस्टिक है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है फॉर कॉम्प्लेक्स। अच्छा आपके पास जो कॉपर के लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस हैं वो हैं और कोबाल्ट के हैं। ठीक है, so let me tell you कोबाल्ट के लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस। ligand exchange reactions involving कोबाल्ट आयन। ठीक है, अच्छा अब बेटा जो कोबाल्ट डाई पॉजिटिव एक्वस है, it is this thing, cobalt 6 aqua ligands and it makes this kind of complex, और इसका जो सॉल्यूशन का कलर होगा वो पिंक होगा। तो बस you have to memorize this thing, that color of this solution will be pink and pink solution is because of this complex, ये कलर कॉम्प्लेक्स की वजह से बनता है। ठीक है, अच्छा सो नाउ व्हाट हैपेंस के अगर के ये हो कोबाल्ट 6 aqua ligands dye positive aqueous, now this is pink solution। ओके, अच्छा अब अगर हम इसमें क्या करें कि एक्सेस ऑफ अमोनिया ऐड करें। ठीक है, इफ excess of ammonia is added in cobalt dipositive aqueous, तो ligand exchange reaction will take place। ठीक है, ligand exchange reaction will happen like this is cobalt H2O 6 dipositive and 6 ammonia ligands beta, 6 ammonia ligands will replace 6 aqua ligands, 6 ammonia ligands will replace 6 aqua ligands। okay, and 6 H2O will be displaced। अब आपको ये याद रखना है कि जो लेफ्ट पे कॉम्प्लेक्स है इट गिव्स पिंक सॉल्यूशन
जो राइट पे कॉम्प्लेक्स है, इट गिव्स ब्राउन सोल्यूशन। ओके, जो राइट पे कॉम्प्लेक्स है, इट गिव्स ब्राउन सोल्यूशन। तो गोपोल्ड का अमोनिया के साथ अगर कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो सोल्यूशन विल बी ब्राउन। यू हैव टू मेमोराइज दिस। ठीक है बेटा? ओके, अगर के इफ एक्सेस में हम ऐड करें HCl इन कोबाल्ट डाइपॉजिटिव एक्वस, ठीक है, तो देन दिस इज कोबाल्ट H2O 6 डाइपॉजिटिव एक्वस। अब हमने HCl ऐड किया बेटा, तो HCl will develop chloroligands. Now these chloroligands, they will displace 6 aqua ligands. Okay, aqua ligands will be displaced by chloroligands. अब ये जो complex on the left है, it is responsible for pink solution, and the complex on the right will give blue solution. जी बेटा, याद रहेगी ये बात? ये बात याद रहेगी? यस सर। यस अच्छा बेटा, इसको हम इस तरह से समराइज भी कर रहे हैं। सर। जी जी। ये इसका NaOH के साथ नहीं होगा? नहीं, इसका NaOH के साथ सिलेबस में नहीं रखा गया। राइट। आपके सिलेबस में बस ये जो रिएक्शंस मैंने करवाए यही रिएक्शंस थे, ये लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस। इसके अलावा अगर किसी और मेटल का पूछें तो इसी तरह आपने डील करना है। सपोज अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि निकल की लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन करें, तो आप फिर कॉपर आयंस की जो आपने पढ़ा है उस तरह से कर दें या कोबाल्ट की तरह लिगेंड एक्सचेंज कर दें। सर लेकिन कलर चेंजेस और वो कलर, वो एग्जामिनर क्वेश्चन इसी तरह डेवलप करेगा कि वो आपने सिलेबस के हिसाब से आंसर करना होगा। किसी और मेटल का आपसे पूछे तो या तो एग्जामिनर हिंट देगा कि इसको कॉपर की तरह करें और या कोबाल्ट की तरह करें। ना अगर हिंट दे तो फिर आपकी चॉइस है, आप कॉपर की तरह या कोबाल्ट की तरह लिगेंड एक्सचेंज कर दें। कलर्स फिर उस केस में क्वेश्चन में गिवन होंगे। राइट बेटा? राइट सर। अच्छा, ये देखो, ये है कोबाल्ट का, दिस इज डाइपॉजिटिव, दिस इज एक्वस। आई एम टेकिंग इट लाइक दिस, दिस इज कोबाल्ट, दिस इज NH3। अच्छा, अब मुझे बेटा कलर्स बताएं। सर पिंक टू ब्राउन। हाँ, ये पिंक सोल्यूशन है और ये ब्राउन सोल्यूशन है। तो अब ब्राउन सोल्यूशन कब डोमिनेट करेगा? जब आप एक्सेस ऑफ अमोनिया ऐड करेंगे। जब अमोनिया एक्सेस में होगी तो फिर ब्राउन सोल्यूशन डोमिनेट करेगा। क्यों बेटा? क्योंकि इक्विलिब्रियम इस केस में फिर फॉरवर्ड साइड पे शिफ्ट होगा अगर अमोनिया एक्सेस में है। लेकिन अगर आप डाइल्यूट करेंगे इस सोल्यूशन को बेटा, डाइल्यूशन का क्या मतलब है? सर एडिंग वाटर। हाँ, डाइल्यूशन का मतलब है कि वाटर एक्सेस में आप कर रहे हो, तो फिर पिंक कलर डोमिनेट करेगा। अगर आपने डाइल्यूशन की यानी वाटर ज्यादा किया तो फिर इक्विलिब्रियम विल गो टू द लेफ्ट, फिर सोल्यूशन पिंक हो जाएगा। अब पिंक सोल्यूशन में अमोनिया एक्सेस में करेंगे फिर सोल्यूशन ब्राउन हो जाएगा। ब्राउन इसलिए होगा कि राइट साइड वाला कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाएगा ज्यादा। लेकिन उसी उसी सोल्यूशन में जब पानी ज्यादा करेंगे तो पिंक सोल्यूशन बन जाएगा ब्राउन सोल्यूशन से। ब्राउन सोल्यूशन टर्न्स टू पिंक अगर डाइल्यूशन करेंगे। ये बेटा समझ में आई ये कॉन्सेप्ट? एंड इट गोज लाइक दिस एज वेल। So here I am writing COCl 6 minus 4
एक्वस। वंस अगेन बेटा देखें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम क्या करें, एक्सिस ऑफ HCl, HCl हम एक्सिस करें तो दिस इज ब्लू सोल्यूशन। जो क्लोरो लिगेंड्स वाला कॉम्प्लेक्स है, इट गिव्स ब्लू सोल्यूशन। तो ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन विल डोमिनेट जब HCl एक्सिस में होगी। लेकिन अगर हम ब्लू सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट का मतलब है एक्सिस ऑफ वाटर हम प्लेस करेंगे ब्लू सोल्यूशन में, तो फिर इक्विलिब्रियम लेफ्ट को शिफ्ट होगा, पिंक कलर डोमिनेट करेगा। ठीक है बेटा। एंड सेम हैपेंस विद दीस लिगेंड्स ऑन दिस साइड। तो व्हाट हैपेंस के ये जो ब्राउन सोल्यूशन है इसमें हम एक्सिस ऑफ अमोनिया ऐड कर रहे हैं, सॉरी ब्राउन सोल्यूशन में एक्सिस ऑफ HCl ऐड कर रहे हैं, तो ब्राउन सोल्यूशन टर्न्स ब्लू। ब्राउन सोल्यूशन में एक्सिस ऑफ HCl ऐड कर दें, सोल्यूशन विल टर्न्स ब्लू। ब्लू सोल्यूशन में हम एक्सिस ऑफ अमोनिया ऐड कर दें, सोल्यूशन टर्न्स ब्राउन। तो यूं वन कलर ऑफ द सोल्यूशन can be changed to other color, and actually ligand exchange reactions are responsible for these color change. ठीक है बेटा, ये सारे ligand exchange reactions हैं जो बस आपको मेमोराइज करने हैं। ठीक है, ये आपके सिलेबस बेस्ड ligand exchange reactions है। एनी क्वेश्चन? ठीक है बेटा, ये ligand exchange reactions है जो मैंने आज पढ़ाए हैं। वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमने स्टार्ट लिया, कॉपर आयंस, एक्वस या एक्वा कॉपर लिगेंड से हमने स्टार्ट किया। एक लिगेंड रिएक्शन ये है आपके सामने, दो लिगेंड, एक लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन। फिर अमोनिया की हमने डिस्कशन की, अमोनिया फ्यू ड्रॉप्स में ऐड करें और एक्सिस में ऐड करें तो ये लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस टेक प्लेस करेंगे। फिर हमने HCl की डिस्कशन की, अगर HCl हम ऐड करें एक्वा कॉपर लिगेंड्स में तो ये लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन विल टेक प्लेस। फिर आपको साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सॉल्यूशन किस कॉम्प्लेक्स की वजह से है, सो यू नीड टू मेमोराइज कॉम्प्लेक्सेस विद करस्पॉन्डिंग कलर्स। फिर कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस के लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस पढ़े हमने, तो कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस के लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन की समरी इज हियर, दिस इज द समरी। तो बेटा दैट इज व्हाट वी हैव। किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। जो हमारा